Polling for the first phase of the Jammu and Kashmir Assembly elections began on September 18 amid tight security arrangements. The voting process that began at 7 a.m. will conclude at 6 p.m. per the Election Commission of India. 24 assembly constituencies across Jammu and Kashmir are going to polls. 16 assembly seats in the Kashmir region and 8 seats in the Jammu region will go for polls in the first phase of elections. Notably, 486 candidates had filed their nomination papers before their respective returning officers in 40 assembly constituencies till the last date of filing nominations on September 12. Out of these, the nomination papers of 449 candidates were found valid during the scrutiny held on September 13, and now with the withdrawal of 34 candidates, 415 candidates now remain in the final electoral fray for phase 3. With this, a total of 873 candidates will be in the final fray in the assembly elections for 90 assembly constituencies, including 219 candidates for 24 assembly seats in the first phase, 239 candidates for 26 seats in the second phase, and 415 candidates for 40 seats in the final phase, the official added. Polling for the second and third phases of the assembly elections will be held on September 25 and October 1 respectively. Meanwhile, speaking to media, JKNC candidate Omar Abdullah said that it is a very good thing they want the people to vote for National Conference as it will benefit JNK. He said that he spoke to some people where National Conference is getting a lot of votes from all sections and expressed hopeful that they will win. Abdullah further said that they have been waiting for this day for 10 years and now they will wait for 8 October, but so far the reports are good. नहीं, बड़ी अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि जो लोग इलेक्शन में हिस्सा लें। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, हर जगह हमारे लोग हैं और जितने वोट पड़ेंगे उतना अच्छा है, जमहूरियत के लिए अच्छा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छा है। फिलहाल जो मैंने अपने साथियों से मौके पे बात की, भारी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ रहे हैं हर इलाके से और हम कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। नहीं, अच्छी बात है। अब 10 साल से हम इस दिन का इंतजार करते आए। हमें तो समझ में नहीं आता कि 18 के बाद हमें इतनी देर जमहूरियत से अलग क्यों रखा गया, हमारा हक हमसे छीना क्यों गया। मुद्दे इस इलेक्शन में बहुत हैं। हमने कोशिश की कि मुद्दों के हवाले से हम लोगों से बात करें और उन्हें बताएं कि अगर 5 साल के लिए उन्होंने हमें अपनी कीमती वोटों से नवाजा तो हम उनके लिए क्या करेंगे। और 8 अक्टूबर तक इंतजार करेंगे, लेकिन अभी तक जो रिपोर्टें आ रही हैं अच्छी आ रही हैं। तो जो अभी नहीं निकले उनके लिए मैसेज कि निकलें, बाहर आएं, अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने उम्मीदवार को चुनें और सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करें। आज तो कम से कम चलो शुक्र है, एक इंटरव्यू के हवाले से इंजीनियर रशीद साहब ने अपने ऊपर पर्दा हटा दिया है। उसने खुद कहा है कि उसके दरवाजे किसी के लिए भी खुले हैं। मतलब ये कि कल को अगर जरूरत पड़ेगी तो वो बीजेपी की मदद करेगा। इंजीनियर रशीद साहब अब जमात के साथ इलेक्शन मिल के लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर इंजीनियर रशीद साहब के दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं तो जमात के भी दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं। ये अपने आप में एक चिंता है और लोगों को इस पे सोच के अपना वोट इस्तेमाल करना चाहिए। BJP MLA candidate from Shangu's Anantnag East Assembly constituency, Veer Saraf, also said that the voting is going on peacefully everywhere. Complaints were received from 1 or 2 places. However, they immediately informed the nodal officers and the issues were also resolved. He appealed to the youth to see which government has brought peace here and choose a government that is sympathetic to the people, choose a government that is working for the people. The results will be very stunning, he added. फैसिलिटी है, मोर और लेस पीसफुल हर जगह चल रहा है। 1-2 जगह हमको शिकायत आई और हमने तुरंत कन्वे भी किया नोडल ऑफिसर्स और हायर लेवल को और इशू रिजॉल्व भी हो गए। तो मैं गवर्नमेंट का अभी 8:30 बज गए, अभी तक मैं पीसफुल चल रही है और होपफुली पूरा दिन ये पीसफुल ही रहेगी और हम सब आशा करते हैं कि we'll have good results out of this अभी आप चटीजीपोरा में हैं। यहाँ पे माइनॉरिटी सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं और अभी आप जो हैं इससे पहले मटन का दौरा किया है। मटन में भी पंडित लोगों के लिए किस प्रकार की फैसिलिटीज बार है? फैसिलिटीज मुझे लगता है हर एक के लिए सेम है।
वी कांट एक्सपेक्ट किसी के लिए ज़्यादा फैसिलिटी और किसी के लिए कम फैसिलिटी हर एक के लिए सेम है और लोग खुश है जिस हिसाब से दे डोंट हैव टू वेट टू मच ऑफ टाइम। लोग आते हैं निकलते हैं और पिकअप हो रहा है, वोटिंग पिकअप हो रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा ये इशू रिजॉल्व, सब ठीक हो जाए। आप बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये बताइए कि आपने भी वोट कास्ट किया है, कितना महत्वपूर्ण है आज का वोट? एक एक वोट हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, खाली बीजेपी के लिए नहीं, हर किसी पार्टी के लिए एक एक वोट इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए ज़्यादा ही है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जीते और लोगों की खिदमत करें। यंगस्टर्स से अपील रहेगी कि आप लोग देखो किस हुकूमत ने यहाँ अमन लाया, उसी हुकूमत को चुन लो। जो हुकूमत लोगों की हमदर्द है उसको चुन लो, जो लोगों के काम कर रही है उसको चुन लो। तो आपकी अपील ये रहेगी कि सभी लोगों से कि जोग दर जोग इस वोटिंग में हिस्सा लें? बिल्कुल जी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 70% पोलिंग हो जाएगी मेरी इस अनंतनाग शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी से और रिजल्ट्स भी बड़े स्टनिंग होंगे।